will inform you about the rules of the quiz. We will ask the question, and whosoever knows the answer shall raise his hands, and we will request that person to answer the question. Any person who has given a correct answer will not be allowed to answer again unless no one else is able to answer it. And as Ajit Saab has already mentioned that, told that we request humbly that don't use the internet, because we are not here to check your intellect, but we just want to come closer to you. Only 10 seconds will be given to answer the questions, otherwise we will answer the question. हमारे वॉलंटियर्स जो हैं वो माइक लेके आपके साथ हैं. जो भी हाथ रेस करेगा वो उनके पास जाएंगे, उनका आंसर लेंगे और एक छोटा सा गिफ्ट हम आपको इनायत करेंगे. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 17 अक्टूबर को सर सैयद अहमद साहब की विलादत हुई थी. आज हम यहाँ पे उनकी कौन सी एनिवर्सरी मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं? We are here to celebrate which anniversary, birth anniversary of Sir Syed? नाम क्या? 197th. Yeah, it's correct answer. Volunteers, kindly hand over the gift hamper. Question number 2. When and where was the scientific society formed? When and where was the scientific society formed? Ghazipur. And which year? कोई और? Ghamdi Saab is willing to answer the question. I think, can you bring the mic? आप करीब हैं. You are very near to it. It's 1863 in district Ghazipur. And he opened a modern girls' school there, which is still there. It is the government girls' school, girls' college. In fact, it is still there. It is exists. Yeah. Kindly hand over the gift hamper to Dr. Ghamdi. Name the first chancellor and first vice chancellor of AMU. माइक वहां ले जाए. First Chancellor Sultan Shahjahan Begum and Vice Chancellor Muhammad Ali Muhammad Khan. Correct answer. Who was the first graduate student of AMU Aligarh? Ishwari Prasad. Correct answer. He did BA in 1881 and he was a historian. चलो आप पूछो. Name the vice chancellor who led a delegation to Saudi Arabia, and the king of Saudi Arabia donated rupees 1 million for the establishment of medical college. Mike. Dr. Zakir Hussain. Yeah, it's correct answer, and he was also the longest serving vice chancellor of AMU. Kindly hand over the gift. Kindly hand over the gift hamper. The most famous biography of Sir Syed was written by Maulana Altaf Hussain Hali. What is the name of biography? माइक वहां ले जाएं. हयाते जावेद. Correct answer. This question is for females only. In which year did Sheikh Muhammad Abdullah of Jammu Kashmir establish girls' school? किसी को नहीं मालूम. किसी को भी नहीं मालूम. We pass over this question to the gents now.
In which year did Sheikh Muhammad Abdullah establish girls' school? Mr. Usman, kindly. Again, please. 1921. It became a high school that time. Yeah, you are right in some. It was established in 1907, but the school, in 1921. Let me correct the question itself. Yeah. It was not Sheikh Abdullah of Kashmir who established this school. It was Papa Mia. His name was also Abdullah. It was not established by Sheikh Abdullah of Kashmir. He was originally from Kashmir. Yeah, okay. But this the answer is correct. 1921. चलो अगला सवाल. Name the two A-League sports personality who led the Indian national team in their respective sports category. पीछे ले जाए. माइक पीछे ले जाए. Zafar Iqbal and Lala Amarnath. Correct answer. Name the Ali who was the prominent filmmaker and who had made the most famous film related to the Mughals. He was the director of the movie. Nasiruddin Shah. लास्ट में ले जाए. Mr. Nasiruddin Shah. नहीं. Mr. Usman, kindly. सलीम जावेद. No. Please don't give the answer, just raise your hands. के आसिफ. Correct answer. Kindly hand over the gift hamper. फिल्म का नाम. K. Asif, and the film was Mughal-e-Azam. How many total number of hall are there in the university, including the girls and boys? How many total number of hostels and hall? माइक वहाँ ले जाए. 17. No. No. Total is 16. No. Including the boys' hostel and the girls' hostel, women's hostel. So, the hall. Including Yeah, the girls correct and boys. answer is both. 19. Is the 19. correct answer. Yeah. Thank you very much for. Thank you very much. A big hand of applause for the people who has won the and for the team member Athar Rasool and Rab Nawaz. Thank you very much. Well played. आइए प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं. अब मैं एक ऐसी शख्सियत को दावत देने जा रहा हूं जिसने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में गुजारा है, लेकिन इस सुहानी शाम में वो हमारे बीच एक अली की हैसियत से शामिल हुए हैं और अलीगी की हैसियत से वो मेहमान खुसूस भी हैं. आप समझ गए होंगे कि मेरी मुराद जनाब नसीम अहमद साहब से है. वैसे तो आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके बारे में मुख्तसरन आपको कुछ बताता चलूँ. नसीम साहब ने आगरा यूनिवर्सिटी से बीएससी किया और फिर मेरठ से एलएलबी किया. आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एलएलएम किया और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से एमफिल किया, जिसमें गोल्ड मेडलिस्ट रहे. पीजी डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया है आईआईपीए न्यू दिल्ली से, और उसके बाद एक बहादुर सिपाही की हैसियत से 1972 में आईएएस में मुंतखब हुए. आपने 1976 में अपने कैरियर की शुरुआत की और मैनेजिंग डायरेक्टर, कमिश्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जैसे ओहदों पे फ़ैज़-ए-आब रहे और लास्ट बट नॉट लीस्ट 2002 से 2007 तक आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे. रिटायरमेंट के बाद आप 2009 से हरियाणा वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर थे और आज
हुकूमत हिंद ने इनकी तमाम सलाहियतों का लोहा मानते हुए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का चेयरपर्सन मुंतखब किया है। दे रहे फ़र्जंद तेरे आज दुनिया को जवाब, चूँकि हम सब फ़र्जंदान अलीगढ़ हैं, दे रहे फ़र्जंद तेरे आज दुनिया को जवाब, यह ज़माने में हैं जैसे आफ़ताब व माहताब, तूने जो बख्शा है वो तकसीम हम कर जाएंगे, हम जहाँ जाएंगे तेरा नाम लेकर जाएंगे। और नसीम साहब भी हमारे बाचार सैयद का नाम लेते हुए आए हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ पे आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें, हमें राय दें और इसी तरह से हमारी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने में मदद करें। जनाब नसीम अहमद साहब, आपकी बहुत सारी तालियों में। AMU अलुमनाई जद्दा के सदर जनाब फरजान अहमद रिजवी साहब और कमेटी में उनके तमाम रुफ़क़ा, मेहमान ख़ुसूसी जनाब मुबारक साहब, मेहमान ख़ुसूसी जनाब शहजाद ख़ान साहब, सीनियर मोस्ट अलीग जनाब इसरार अहमद सिराज साहब, बिरादरान अलीगढ़, ख़वातीन व हज़रात और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सर सैयद आले रहमा जैसे ही हमजहद शख्सियत की अफ़कार, उनकी क़ुरबानियों, उनके कारनामों के बारे में मुख्तसर से वक्फ़े में मेरे लिए कुछ रोशनी डालना समंदर को एक कूज़े में महदूद करने के मुतरादिफ होगा। अलीगढ़ की एक बात याद आती है कि जब भी कोई नया वाइस चांसलर लगता है तो ये कहा जाता है कि आप सर सैयद के जानशीन हैं, और इस किस्म की बातें जब मैं स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी में उस वक्त से सुना करता था। जब मैं वाइस चांसलर लगा तो मेरे बारे में ये कहा गया कि आप सर सैयद के जानशीन हैं। जिन साहब ने ये बात मुझसे कही थी, मैंने बरजस्ता उनको ये जवाब दिया कि आप पहले वालों को भी सबको जानशीन कहते रहे थे, लेकिन आज आप सही रास्ते पर आए, जानशीन तो मैं ही हूँ। और वो यूँ कि सर सैयद आले रहमा भी मुनसिफ थे और मैं भी मुनसिफ था, और तुर्रा ये कि मैं अलीगढ़ में ही मुनसिफ था। तो मेरे लिए ये बायस फ़ख्र है। आपको शायद मेरे कहने का अंदाज़ पसंद ना आया हो, लेकिन ये हकीकत है कि अलीगढ़ और ख़ास तौर से बानी अलीगढ़ के बारे में मेरी जो वाबस्तगी और उनसियत और मेरे दिल में जो उनकी कदर है, वो इस बात से, सिर्फ इस बात से भी उस और मुस्तहकम होती है कि मैं भी मुनसिफ था। और जब मैं वाकई अलीगढ़ में मुनसिफ था तो मैं जो दीवानी कचहरी का जो रिकॉर्ड रूम था उसका भी इंचार्ज था। तो एक दफ़ा जब सफाई हो रही थी तो कुछ बस्ते ऐसे निकले जिन पर कई कई अंगुल गर्द चढ़ी हुई थी, कोई उनको खोलता नहीं था। तो एक फाइल में, एक बस्ता मैंने जो खुलवाया तो उसमें से कौन कौन से कागज़ पुराने जिनकी कोई अहमियत न रही उनको तल्फ़ किया जाना था। तो एक जो हमारे नीचे मुलाजिम थे उन्होंने एक फ़ाइल निकाल कर रखी, इसको भी तल्फ़ किया जाना है। तल्फ़ किया मीन्स वीड आउट करना है। वो मैंने ऐसे उठा के देख ली तो एक 6 इंच बाई 4 इंच के इतने बड़े कागज़ पर एक उर्दू में बहुत ही खुश्क कुछ इबारत लिखी हुई नज़र आई। एंड लो एंड बिहोल्ड आई फाउंड दैट इट वॉज एन ओरिजिनल जजमेंट pronounced by Sir Sayyid.
उसको पढ़ा। उसमें एक आध जगह पानी की बूंद पड़ गई थी जिसकी वजह से वो अल्फाज जो थे धुंधले हो गए थे। आगे पीछे का जोड़ करते हुए उसको मैंने पूरा इबारत को पूरा कर लिया और मालखाने से उसे रिकॉर्ड रूम से दस्तावेज़ इधर उधर करने की किसी को इजाज़त नहीं होती, लेकिन मैंने हिम्मत करके अपने डिस्ट्रिक्ट जज से ये दरख्वास्त की कि ये साहब ये इस फाइल की अब कोई अहमियत नहीं रही और इसको तलफ करने के लिए सेग्रीगेट किया गया है, क्या इस फाइल को मैं ले सकता हूँ? तो उन्होंने वजह पूछी तो मैंने बता दिया इसकी वजह ये है। तो उन्होंने कहा नसीब मैं तुम्हारी साफगोई की तारीफ़ करता हूँ और इस फाइल को ले जाओ। एंड दैट स्मॉल पीस ऑफ पेपर ऑन विच a handwritten judgment of Sir Syed was there, I submitted it to the university, and the then Vice Chancellor, Professor Abdul Alim, was so happy about it that immediately he ordered, rather asked his people to get it registered with the Archives of India. तो उस जजमेंट के बारे में तफसील में जाने से आप लोगों को शायद वो नहीं था, वो एक हक़ शुफ़ा का एक फ़ैसला था। बहरहाल ये मैंने बात इस बात से कही कि सर सैयद जहाँ भी रहे, जो कोई भी उन्होंने इक़दाम उठाए, उनकी इनफरादियत जो है दूर से ही झलकती थी। Very few people have so far highlighted anywhere is that Sir Syed was a democrat of the highest order. चाहे साइंटिफिक सोसाइटी की मीटिंग्स की रुदाद हो या कॉलेज कायम करने से पहले एक इश्तिहार अखबार में निकाला गया हो जिसके ज़रिए हायर एजुकेशन के कंसेप्ट पर लोगों के मज़ामीन को इकट्ठा करना हो, या यूनिवर्सिटी कॉलेज कहाँ कायम होगा उसके बारे में लोगों की राय जानने के लिए इश्तिहार छपवाना, ये ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इनकी जिससे ये चीज़ बिल्कुल वाज़े तौर पर सबके सामने आती है कि कभी भी उन्होंने अपनी सोच को किसी पर थोपा नहीं। Whenever there was a sensitive issue which came his way for deciding a particular matter with regard to the proposed college, he preferred to get opinions from others. And this was a quality which has so far not received the attention which it deserves. दूसरे हाथ से काम करना, यानी कि जिस वक्त रिटायर होकर बनारस से आ गए अलीगढ़ में, तो जब वो जो स्ट्रेची हॉल वाली विंग की इमारतों की तामीर शुरू हो चुकी थी, दिन भर खुद धूप में खड़े होकर सुपरवाइज करना, मिस्त्रियों को और संग तराशों को हिदायतें देना, उसके बाद लालटेन की रोशनी में मगरिब की नमाज के बाद पैसे पैसे का हिसाब लिखना, उनके हाथों का लिखे हुए हिसाब अलीगढ़ आर्काइव्स में मौजूद हैं, जिसमें एक पैसे से नीचे पाई होती थी, पाई तक का हिसाब अपने हाथ का लिखा हुआ। दूरअंदेशी का ये आलम था कि जिस वक्त स्ट्रेची हॉल बन रहा था तो अल्लामा शिबली नुमानी जो कि फ़ारसी के प्रोफेसर थे, उन्होंने सर सैयद से ये कहा कि बिसात तो आपकी 60 तलबा की है, इस वक्त इतना पैसा क्यों ज़ाहिर कर रहे हैं, इतना बड़ा हॉल क्यों बनवा रहे हैं। उन्होंने बरजस्ता जवाब दिया
कि मौलवी साहब इस बात को आप नहीं समझेंगे। मैं ये देख रहा हूं कि वो दिन बहुत जल्द आएगा कि जब ये स्ट्रेची हॉल भी कम पड़ेगा। एंड दैट एग्जैक्टली हैपेंड। ये कैनेडी हॉल बना और जिस वक्त बना था सारे हिंदुस्तान में उसकी धूम मची थी। आज तलबा की तादाद जो कि 28,000 से भी तजावुज़ कर चुकी है, उसके लिए निहायत ही कम पड़ रही है जगह। देखते हैं वो कौन सा सर सैयद का जानशीन आएगा जो कि एक नए हाल की तामीर की मुहिम चलाएगा। उनकी सोच के अलावा उनके कामों में एक बेलौस खिदमत का जो जज्बा होता था मिल्लत के लिए, वो हर जगह आया होता था। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने सुना होगा, ख़ास तौर से जो पुराने ओल्ड बॉयज़ हैं, कि अलीगढ़ की जो नुमाइश होती है ये उस ज़माने में भी लगती थी। किसी से सर सैयद ने ये कहा कि सबसे ज़्यादा भीड़ जो है नौटंकियों वाले स्टॉल्स पे होती है, वहाँ जाके तुम झोली फैला देना, पैसों की बारिश होगी। तो सर सैयद, जबकि शुरफा में नौटंकियों के स्टॉल पर जाना बड़ा ममनू समझा जाता था, पहुंच गए और जाकर उन्होंने बाकायदा अपने कुर्ते का दामन फैला के कहा कि भाइयों, मैं तुमसे कुछ लेने आया हूं अपने कॉलेज के लिए। तो नौटंकी में तो मनचले ही होते हैं। एक तरफ से ये आवाज़ आई कि पहले ठुमका लगा के दिखाओ तब हम तुमको पैसे देंगे। फौरन जो साजिंदे बैठे हुए थे, पैर उन्होंने अपने आगे किए, दो घुंघरू बांधा ही गए और ढोलक वाले सबको समझाया कि मैं किस तरह से करूँगा, किस तरह से बजाओगे। साजिंदों ने साज बजाया और इतने लहीम शहीम जसामत वाले सर सैयद ने ठुमका लगाया और पैसे की बारिश हो गई। बटोरने वाले हैरान हो गए जो उनके साथ आए थे। गरज ये कि उनकी हर चीज में एक ऐसी उनकी सोच होती थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। शहजाद साहब ने उनकी लंदन जाने का तफसील से उन्होंने बयान किया, लेकिन एक बात जो बहुत अहमियत की हामिल है वो ये कि सब कुछ जो कुछ खर्च हुआ था उन्होंने खुद अपना लगाया था। हद तो ये है कि अपना उनका ज़ाती प्रेस था, उसको बेचकर रकम इकट्ठा करके और इधर उधर से लेकर तब वो लंदन अपने बेटे के साथ गए थे। और सब लोग जिनको भी अलीगढ़ के बारे में वाकफियत है कि आम तौर से ये समझा जाता है कि सर सैयद ने तो हद से हद मदरसतुल उलूम मुसलमानानी हिंद बनाया और उसके बाद उसको 2 साल में वो MAO कॉलेज में कन्वर्ट हुआ। यूनिवर्सिटी की तहरीक ने तो ज़ोर उनके इंतकाल के बाद किया, ज़ोर पकड़ा। लेकिन जो पहला मेमोरेंडम अलीगढ़ फंड कमेटी की तरफ से और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इश्तराक से जो पहला मेमोरेंडम सर सैयद ने वाइस राय को पेश किया था, उसमें उन्होंने यूनिवर्सिटी का खाका खींचा था। Somehow it so happened that some people who were not very responsive about what was in the mind of Sir Sayyid, they rejected his plea on the ground that if at all a university comes up at the initiative of the Muslims led by Sir Sayyid Ahmad Khan, the government of the day will not give any grant to that institution.
तो बड़ी मायूसी उनको हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और कहा कि चलिए शुरुआत कॉलेज से करते हैं। मैं ये बात आपके सामने इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि खाका उनके जहन में था। मुबारक साहब ने एक पैसेज जो पढ़ के सुनाया था, उस वक्त ये कहा गया था कि उसका मैं उर्दू में करके बताता हूँ कि आज ये जो एक नन्हा सा पौधा, जिस वक्त उसकी संग बुनियाद कॉलेज का रखा जाता, जिसकी बुनियाद आज रखी जा रही है, संग बुनियाद जिसका आज रखा जा रहा है, वो एक दिन बहुत ही कदावर दरख्त की शक्ल इख्तियार करेगा, जिसकी शाखें दुनिया के कोने कोने में फैलेंगी। तो ही वॉज क्वाइट क्लियर इन हिज माइंड एंड इमेजिनेशन एंड हिज विजन दैट a day will ultimately will come when this small and humble initiative of establishing MAO college will take the shape of a university. गरज ये कि चाहे साइंटिफिक सोसाइटी के मकासद, मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का क़याम, MAO फंड कमेटी की तश्कील, जो भी आप जिस पहलू पर शख्सियत के काबिशों पर आप नज़र डालें, वो एक छाप उन्होंने छोड़ी थी। यूनिवर्सिटी है, हम सबको इसका फ़ख्र है कि हम वहाँ से निकले हुए हैं, लेकिन आज भी हमको ये सोचना चाहिए कि सर सैयद का जो विज़न था, जो तहरीक थी, उसकी मानवियत आज के दौर में और भी ज़्यादा हो गई है। और उसके लिए सिर्फ हमको अपने आप पर यह फ़ख्र कर लेना कि हम उस इदारे के पढ़े हुए हैं जिसको की बुनियाद सर सैयद आले रहमान ने डाली थी, ये काफ़ी नहीं है। नाउ द अनफॉर्चुनेट थिंग अबाउट द मिल्लत इज़ दैट बिकॉज ऑफ द वेरियस फैक्टर्स a sense of despondency has creeped into the Muslim mind. Despondency to the extent that wherever there is no element of bias, we come up with the excuse कि हमारे सबके साथ जो ताज्जुब बढ़ता जाता है, इसलिए हम चाहते हुए भी, मेहनत करने के बावजूद भी उस हद तक नहीं पहुंच पाते जहां जिन मुकाम पर बिरादरान वतन पहुंच रहे हैं। कुछ हद तक सदाकत हो सकती है इसमें, लेकिन हम ऐसी सोच रखने के साथ जो हम रखते हैं, तो ये हम भूल जाते हैं कि ये मुकाबला जाती दौर है। कंपेटिटिवनेस इज द ऑर्डर ऑफ द डे। और समाज के किसी भी शोबे में कोई भी आदमी, कोई भी शख्स अपना मुकाम बनाएगा तो उसके लिए कमर कसने के लेनी चाहिए कि मैं उस मुकाम तक जब ही पहुंचूंगा कि जब मैं अपने शोबे में सरे फहरिस्त होऊंगा। हम क्या ये मानकर चलें कि बिरादरान वतन के हर पढ़े लिखे को अच्छी मुलाजमत मिल रही है? नहीं मिल रही। It's not because of any bias. This is the situation. With the exploding population in the country, the positions are few, but the candidates are in a very large number. And only those will make the mark who are, as I said, at the top of their discipline. There is no dearth of opportunities. The canvas of opportunities in India is growing by the day. लेकिन शर्त इसी बात की है कि हम ये तहैया कर लें कि अगर किसी ने हमसे पहले वो मुकाम पाया था तो वो भी इंसान थे और हम भी इंसान हैं। अगर उनको कामयाबी मिली तो इंशाअल्लाह हमको भी कामयाबी मिली। लेकिन कुंजी इस बात की है कि हम जिस शोबे में भी तालीम या तरबियत हासिल कर रहे हैं या ट्रेनिंग ले रहे हैं, हमको जो है सफ़े अव्वल में अपना मुकाम बनाना होगा। और ये जो मामला है
कंपेटिटिवनेस का, ये बढ़ता ही जाएगा. The so-called ghettoization is not going to help us. We have to come out of our groups and see that with a sense of confidence that I'll be among the forefront of my discipline. अलीगढ़ के पढ़े हुए उम्दा से उम्दा डॉक्टर मौजूद हैं, उम्दा से उम्दा वकला मौजूद हैं, उम्दा से उम्दा इंजीनियर मौजूद हैं, एकेडमिशियंस मौजूद हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो वो मुकाम नहीं बना पाए. वैसे भी the top positions are limited and only those will make the mark that will be there who have excelled. I am repeating this time and again कि मैं आपके जहनों में ये बात डालना चाहता हूँ कि इस मुकाबला जाती दौर में मेहनत और लगन के सिवा हमारा कोई मददगार नहीं हो. पूरे नॉर्थ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ कि देयर इज ए क्राइसिस ऑफ मैनेजमेंट इन द मुस्लिम मैनेज्ड इंस्टीट्यूशंस. किसी भी इदारे को भी उठाकर आकर देख लीजिए कि साहब पैरेलल मैनेजमेंट कमिटीज बनी हुई हैं, अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं. ये क्या कोई डिजाइन है? डिजाइन नहीं. ये मेरी और आपकी और हमारे और साथियों की कमियां हैं, जिनके मकासद जो है निजी हैं. कौम का भला वो चाहते नहीं, इक़्तिदार चाहते हैं. और नतीजतन होता क्या है कि बुज़ुर्गों के बनाए हुए आला से आला मेयार के जो इदारे हैं वो इस वक्त बड़े, उनका कोई पुरसा हाल नहीं है. लेकिन आप केरला वगैरह में जाएं, सूरत हाल बिल्कुल ही मुख्तलिफ. इट माइट बी ए न्यूज़ टू ऑल ऑफ यू that right now there are 15 Muslim managed quality institutions, medical institutions, which are functioning in a small state like Kerala. केरला के लोगों ने निकलकर ख़ास तौर से गल्फ में जो कामयाबी हासिल की है, the breakthrough which they have achieved in the entire Gulf, the share of Keralites is the maximum. क्या चीज़ उनमें है जो हम में नहीं है? ये बड़ा सोचने की बात है. Why their institutions are flourishing, and as far as North India is concerned, everything is in a mess. हमको एहतिसाब करना होगा, अपना देखना होगा, और कुछ लोगों को उठना होगा जिनके जहन में ये बात होगी कि अब लिहाज से काम नहीं होने वाला है. लिहाज तो एक तरफ उठा के रख देना होगा, और जो लोग ऐसे हैं जो अपने मफाद के लिए इदारों को बर्बाद कर रहे हैं उनको हटाना होगा. A new life has to be pumped into our educational institutions. बात हायर एजुकेशन की होती है हर जगह, empowerment of Muslims through higher education. मैं ये कहता हूं कि हायर एजुकेशन को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दीजिए, बात करिए क्वालिटी एजुकेशन की. और क्वालिटी एजुकेशन में स्किल डेवलपमेंट जो है उसकी बड़ी अहमियत है. आज के दिन मैं गुड़गांव में रहता हूं, मेरा ऑफिस तो दिल्ली में है और वहां से करीब 30 किलोमीटर दूर मेरा घर. देयर इज अ मोनोपोली ऑफ प्लम्बर्स. आप एक छोटे से छोटे काम के लिए जो 10 मिनट में करेगा वो आदमी, अगर बुलाएं किसी प्लम्बर को तो वो 1000 रुपये मांगता है. दिन में अगर वो 3-4 ऐसे जगह जाता होगा तो एक अनपढ़ प्लम्बर जो है 4000-5000 रुपये रोजाना कमाता है. मैंने तो एक ट्रेड की बात की. देयर